اسی میں میرے سسو آج ہم سب یہاں عقیدہ تنویر میموریل سروس میں شریک ہیں، اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی ہی میں لوٹ جاتا ہے، لیکن انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ خدا نے اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا ہے اور وہ جیتی جان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان نے اپنا دم پھونکا ہے، اپنا روح سے دیا ہے، اور اس طرح انسان کا بدن ہے اور روح بھی ہے۔ اور بدن جو ہے یہ پھر مٹی میں لوٹ جاتا ہے۔ بدن حرکت بھی کرتا ہے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے، اور بدن مرنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور جسم جو ہے گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس طرح انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے پھر مٹی میں لوٹ جاتا ہے۔ لیکن اسی وجہ سے انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح کدھر چلی جاتی ہے؟ کیا روح جو ہے اس مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ اسی میں میرے عزیزو، روح کبھی نہیں مرتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور روح کا تعلق جو ہے روحانیت کے ساتھ ہے۔ روح اس وقت مردہ ہوتی ہے جب روحانیت سے خالی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے روحانیت میں مردہ ہوتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے مذہب جو ہے، روحانیت جو ہے، خدا کی باتیں جو ہے ہمیں زندگی بخشتی ہیں، ہمیں قوت دیتی ہیں، ہمیں پھر بحالی دیتی ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو روح جو ہے مرتی نہیں بلکہ زندہ رہتی ہے۔ اور آج انجیل مقدس میں بھی ہم نے دیکھا کہ لازر اور اس امیر آدمی کی کہانی میں ہمیں پتہ چلا ایک شخص جو بہت غریب تھا اور وہ ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اور ایک امیر شخص جس کے پاس بہت دولت تھی، وہ بہت عیاشی کر رہا تھا۔ اور لازر جو ہے جو وفات پا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ امیر آدمی بھی وفات پاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اب لازر کدھر ہے اور میں کدھر ہوں۔ لازر کو دیکھتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی گود میں ہے، اور وہ جو ہے بالکل آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ امیر شخص جو ہے عذاب کی زندگی بسر کرتا ہے، دکھ اور تکلیف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں جو ہے زندہ رہتی ہیں، روحیں مرنے کے بعد سکون سے بھی رہ سکتی ہیں، روحیں مرنے کے بعد بے چینی میں بھی رہ سکتی ہیں، تڑپتی بھی ہیں، روحیں زندہ رہتی ہیں، دکھ تکلیف کی حالت میں بھی ہو سکتی ہیں، سکون اور آرام کی حالت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور آج کی پہلی کلاس میں ہم نے سنا کتابیں کہ راستداروں کی روحیں خداوند کے ہاتھ میں ہیں اور انہیں عذاب نہیں چھوئے گا۔ اس لیے جاہلوں کی نگاہ میں وہ مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ زندہ ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح ہم سب کے لیے قیامت اور زندگی ہے۔ تو خود کہا مقدس یوحنا کی انجیل میں سے 11 باب 25 آیت میں یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا۔ اسی میں جو روحیں، میں روحوں پر بات کر رہا ہوں، روحوں پر لوگ اکثر ڈر بھی جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ روحیں تنگ کریں گی ہمیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ روحیں جو ہیں ان کے مختلف کام ہیں، وہ متحرک رہتی ہیں، جسم ساکن ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے حرکت کرتی ہے، روح دوسروں کا خیال کرتی ہیں، روحیں دوسروں کا خیال کرتی ہیں۔ اچھی روحیں جو ہے زندگی میں بھی، جو جن کے اندر اچھی روح ہوتی ہے،
وہ नापाक नहीं होती है, पाक होती है, खुदावंद के साथ रहने वाली रूह होती है, दूसरों का ख्याल करती है। इसी तरह जो है मरने के बाद भी वो दूसरों का ख्याल करती हैं। लाजर और अमीर आदमी की कहानी में इस तरीके से एक रूह जो है अच्छी जगह पा चुकी है और दूसरी रूह जिसने अच्छा काम नहीं किए थे अब वो मोहलत मांगती है, मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर अपने भाइयों को समझाऊं। तो दूसरों का ख्याल करती है कि मैं तो मुसीबत में आ गया हूँ, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे अपने किए की सजा मिल रही है, लेकिन मैं दूसरों को बचा सकूं। तो यहाँ रूहें जो हैं दूसरों का विचार करती हैं कि मैं दूसरों को भी बचा सकूं, दूसरों की फिक्र करती हैं। इसी तरह मुसीबत रूहें बातें करती हैं, रूहें बातें करती हैं, हम कलाम होती हैं। लाजर और अमीर आदमी की कहानी में किस तरह जो है रूहें बातें कर रही हैं। ये अमीर शख्स जो है जो मर चुका है वो बातें कर रहा है कि मुझे मोहलत दे कि मैं वापस जाऊं, मैं जाकर अपने भाइयों को समझाऊं। रूहें बातें करती हैं। और फिर मुकाशफ किताब में लिखा है और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो एक ने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहों को देखा, कुर्बानगाह के नीचे रूहों को देखा जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाइस कत्ल किए गए थे। ये ऐसी रूहें थी जिन्होंने कलाम की वजह से दुख उठाए थे, जिन्होंने गवाही की वजह से गवाही पर कायम रहे थे। ऐसी ईमान में मजबूत रूहें जो मज़बे के नीचे देखी गई रूहें यकीनन आपस में बातें करती होंगी। रूहें बाशऊर होती हैं, शऊर रखती हैं, फजूल बातें नहीं करती हैं, हिकमत के साथ बातें करती हैं, समझ के साथ बातें करती हैं, बाशऊर होती हैं, बातें करती हैं। पहले शायद बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हो चुकी हैं, नादानियाँ हो चुकी हैं, गुनाह हो चुके हैं, गलतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मरने के बाद जो है अब गलतियाँ नहीं हो रही हैं, अब समझ आ गई है, अब बहुत संजीदा हैं, बाशऊर होती हैं। तो रसूल की मुस्लिम बाब 30 आयत में जब खुदा की सूरत तब्दील होती है, हज़रत मूसा और इलियास पहाड़ पर बातें करते दिखाई दिए। तो हज़रत मूसा और इलियास दिखाई दिए थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। तो जो है ये जो रहमत कर गए हैं, जो है हज़रत मूसा जो है वो इस तरह पहाड़ों में ही गायब हो गया, इलियास भी पहाड़ जो है उठाया गया, रथ में उठाया गया आसमान पर। तो ये जा चुके थे, ये ऐसी हस्तियां, अजीम हस्तियां जो आपस में बातें करती खुदा के साथ। इसी तरह मुक़द्दस रसूल पहला तसल्लीकियों में लिखते हैं, हम ख्वाह जागते हों ख्वाह सोते उसके साथ जिए। तो जो जाग भी रहे हैं, यानी जो जिंदा हैं, जो वफात पा चुके हैं, वो सो गए हैं, तो हमने यीशु मसीह के साथ जीना है, यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर करनी है। तो मसीह हम कितना जिंदगी में यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर करते हैं और कितना हम मरने के बाद जिंदा उसके साथ जिंदगी बसर करेंगे। तो दोनों सूरतों में हम उसी के हैं और हमने उसी के साथ रहना है। इसलिए मुक़द्दस रसूल ने अपने खत में लिखा, कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना मौत, ना बीमारी, ना मुमलकतें, मौत भी हमें उससे जुदा नहीं कर सकती। हम किसी सूरत में अपने खुदावंद से जुदा नहीं है, उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं है, हम हमेशा उसके साथ है, वो भी हमारे साथ। उसने कहा कि दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ है। खुदावंद जिसका नाम इमानुएल है हमेशा हमारे साथ है। मुस्लिम रूहें मुबारक हालत में रहती हैं, मुबारक हालत में रहती हैं। और मुकाशा किताब में लिखा है 14वें बाब में, अब से मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं, जो खुदावंद में मरते हैं, जो खुदावंद के साथ चलते रहते हैं, खुदावंद की बंदगी करते हैं। घर में नहीं बैठे रहना, अब फिर बातों में भी आना है, खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करनी है। तो खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद की गवाही देते हैं।
जो खुदावन में मरते हैं, खुदावन में जिंदगी बसर करना। ठीक है, मसीह, ठीक है हम मसीह है, लेकिन मसीह में होना कुछ और है, मसीह होना कुछ और है, लेकिन मसीह में होना कुछ और है। मसीह जिंदगी बसर करना है, मुकम्मल तौर पर दिलवाई देनी है। रूहें मरती नहीं है, जिंदा रहती हैं। और कुरान में लिखा है कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा, इब्राहिम भी वफात पा चुका था, इसहाक भी वफात पा चुका था, यकूब का खुदा, यानी ये ईमानदार लोग थे, तो ये जिंदा है, इसलिए उनको याद किया जाता है। इनकी वजह से खुदा भी जो है अपना वजूद अपना जाहिर कर रहा है, और ये लोग भी, खुदा जो जिंदा है तो ये लोग भी जिंदा हैं। वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, तो जो है ये जिंदा रहते हैं, ये कभी मरते नहीं। और वसीयत में हमारे लिए वो सो गए हैं, जाग उठेंगे। मरने वालों का इस्तकबाल करती हैं रूहें, मरने वालों का इस्तकबाल करती हैं, जो बाद में मरेंगे उनका वो इस्तकबाल करेगी। और लिखा है क्योंकि आलम अरवा, आलम अस्वद कहते हैं जमीन का पाताल, एक है आसमान जैसे जन्नत और दोजख है, एक आलम अस्फल है जमीन के नीचे पाताल में, जो है जहाँ हिसाब किताब होना है और दूसरे के लिए, उनकी सफाई के लिए, उनकी मदद के लिए बरसत में रूहें चली जाती हैं, जब तक उनका मुकदमा लड़ नहीं जाता है, उनके लिए दुआएं नहीं हो जाती हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए इल्तिजाएं करते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं, तो फिर उनकी मुदस्सी होती रहती है। खुदावंद जो उन्हें आज़ाद करता है, तो लिखा है शायर की किताब में 4 बाब में, नीचे से आलम अस्फल तेरी आमद के इस्तकबाल में जुम्बश खाती है, नीचे से आलम अस्फल तेरी आमद के इस्तकबाल में जुम्बश खाती है। जब खुदावंद आएगा तो उन्हें रहाई देगा। और जब यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ तो वो जो है उस डाकू को जिसने तौबा की, तो आज मेरे साथ दोस्त हो गए, यीशु चला गया आसमान पर, तो जन्नत में चला जाता है, फिर वापस आता है, और फिर जो है यही होगी दफन होने से पहले ही आसमान पर चला गया, फिर आकर दफन हो गया, और फिर की में लिखा कि बरदत में जा उतरा, फिर वो बरदत में उतर गया, बरदत में, अभी वो आसमान पर नहीं उठाया गया, फिर वो जब दफन होता है तो बरदत में जाता है और उन जिंदगी रूहों को आज़ाद करता है। इसका भी कुरान में जिक्र है। इसी तरह इब्राहिम में जिंदगी रूहों के पास जाता है जो नूह के तूफान के वक्त से, नूह के ज़माने से जिंदी थी, उन्हें भी वो जो है आज़ाद करता है, तो वो भी जो है तड़प रही थी। और ये जो रूहें पुकारती हैं, ये पुकारती हैं, गोया जानदार हैं, और शायद हम फरमाते हैं ऐ पाक गाओ, क्योंकि खुदावंद ने कहा ऐ जमीन की गहराइयों ललकारो। तो जमीन की गहराइयों, जहाँ लोग मौजूद हैं, जमीन की गहराई में, पाताल में, आसमान में पुकारो। तो आसमान में भी जो जा चुकी हैं तो वो भी पुकार रही हैं। तो इस तरह पूरी कायनात की रूहें पुकारती हैं। पाक मास में हम तमाम मुकद्दसों के साथ, तमाम मरने वालों के साथ खुदावंद की हुजूरी में, ये फरिश्तों की हुजूरी में ये इबादत करते हैं। तमाम मुकद्दसों की इबादत की पाक मास में कोई खास इबादत है, आला इबादत है, जिसमें हम शिरकत करते हैं। और फिर मुकाशिफ साहब लिखा 6 बाब 9 आयत में, कुर्बान गाह के नीचे रूहें खुदा को पुकारती हैं। कुर्बान गाह के नीचे रूहें खुदा को पुकारती हैं, और रूहें झलकती हैं, रूहें झलकती हैं। और लिखते हैं फिर नाम का उसके दूसरे बाब में, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलम अस्फल में, क्या आसमान पर, क्या जमीन पर, क्या आलम अस्फल में। और एक और हवाले में लिखा है खुदावंद जब आएगा तो तमाम रूहें उस जो है उसका इस्तकबाल करेंगी, जो है जहाँ कहीं भी होंगी, चाहे वो समुद्र की तह में होंगी, चाहे वो जमीन की तह में होंगी, जहाँ कहीं भी वो दफन होंगी, सब जो है वो जो है उसका इस्तकबाल करेंगी, सब इकट्ठी हो जाएंगी। रूहें कांपती हैं। अय्यूब नबी किताब में लिखा है 36वें बाब में, मुर्दों की रूहें जमीन के नीचे कांपती हैं, मुर्दों की रूहें जमीन के नीचे कांपती हैं। अब उसी अभी तक जिक्र नहीं आया कि रूहें आकर किसी को तंग कर रही हैं, रूह मुझे तंग कर रही है।
अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है जिनकी रूह मुझे तंग करती रहती है। अभी तक ये बात अभी तक नहीं आ रही कलाम में कि कोई रूह आकर किसी को तंग करे। ये इंसान के दिल में बातें बैठ जाती हैं, दिलों में बैठे बातें बैठ जाती हैं, डर खौफ पैदा हो जाता है और वही हमें तंग करता रहता है। हम ऐसे रूहों का नाम ले लेते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं। तो इस तरह ये नहीं बातों ने, ऐसी बातों ने, ऐसी मख्फी बातों ने जो है हमें चपड़ा हुआ होता है, हमें कैदी बनाया होता है, तो खुदा हमें आजाद करता है, हमें आराम देता है। इसी तरह मसीह रसूल उनकी रूहें, उनकी दुआएं सुनी जाती हैं, उन्हें दुआएं भी करती हैं। तो जो रहमत कर जाते हैं वो आसमां खुदावंद की हुजूरी में होते हैं, वहाँ अब वो बीमारियों से, दुख और तकलीफों से आज़ाद हैं। तो वो जो पीछे रह गए हैं उनके अजीज, वो उनके लिए दुआएं करते हैं। तो इसलिए रूहें जो हैं हमारे लिए वहाँ भी सरगर्म हैं, वहाँ भी जो है हमारी बेहतरी चाहती है, खुदावंद की हुजूरी में है और वो वहाँ से खुदावंद की सिफारिश करती हैं। और इस तरह रूहें जो हैं उनकी दुआएं सुनी जाती हैं। और दूसरा मकाबीन में काहिन आज़म ओनिया और अरमिया नबी की दुआएं सुनी गई। तो इस तरह जो है रूहें दुआएं करती हैं, रूहें जो है दुआएं मांगती हैं और रूहें जो है हमारी भलाई चाहती हैं, हमारी फिक्र करती हैं। मुस्लिम लोग रूहें हमारी फिक्रमंद हैं, हमारी भी फिक्र करती हैं। और खुदा यीशु मसीह जो जिंदा है और वो जो है नूरानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी कितनी फिक्र करता है। खुदा जिंदा है, रूहानी तौर पर हमारे साथ है और जिस्मानी तौर पर हमारे साथ है, हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। इस तरह खुदा जो है वह कलाम में भी मौजूद है, पाक शाकत में मौजूद है, दुआ में भी मौजूद है। खुदा उनकी कितनी जो है दूरी की कितनी हमारे पास शक्लें हैं खुदा उनकी मौजूदगी की, तो उन्हें हमारी फिक्र करती है। यूहन्ना जो है चौथे बाब दूसरा लिखते हैं खुदा रूह है। अब जहाँ देखते खुदा रूह है और जो उसकी प्रस्तिश करते हैं उन्हें जरूर है कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदा बताते खुद एक रूह है। खुदा की रूह पानियों पर जुम्मश करती थी हकीम पिता। इसी तरह मुस्लिम रिश्तों फरिश्ते भी जो हैं अरवाह रूहें हैं, वो अमल और हरकत करते हैं। इसी तरह रूहें खिदमत करती हैं। इब्रानियों के नाम साथ एक बार 14वीं आयत में क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात के वारिसों की खातिर खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। और हम भी खिदमत करते हैं, एक दूसरे की दुआ करते हैं, एक दूसरे की खिदमत करते हैं। तो ये खिदमत का अमल जो है, भलाई का अमल सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद भी जारी रहता है। हम मरने वालों के लिए दुआ करते हैं, तो याद करते हैं, उनकी फातिमा से कुर्बानी चढ़ाते हैं। तो इस तरह जो है मुक़द्दस अगस्तिन की वालदा ने यही कहा था अपने बेटे को, जब उसके बेटे ने कहा माँ बता तेरे लिए क्या कर सकता, जब बेटा जब तू खुदा के तार पर जाए तो मुझे याद करना, जब खुदा के तार पर जाए तो मुझे याद करना। तो इसलिए खिदमत का वो खिदमत मांगती भी हैं, खिदमतें करती भी हैं। नबी किताब में लिखा है चौथे बाब में, इस पर उसने कहा कि ये वो दो मंसूर हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। तो ये फरिश्तों के बारे में क्या है, इस तरीके से फरिश्ते भी खुदा उनकी हजूरी में रहते हैं, ताबेदारी में रहते हैं, खिदमत करते रहते हैं। इसी तरह ज़बूर 148 में लिखा है, ऐ उसके तमाम फरिश्तों उसकी हम्द करो, ऐ उसके तमाम लश्करों उसकी हम्द करो। तो यहाँ जो रूहें भी मौजूद हैं आसमान में और फरिश्ते भी मौजूद हैं। फरिश्तों की मौजूदगी और रूहों की मौजूदगी भी आसमान में मौजूद है और आलम अरवा में भी मौजूद है, आलम असफल में भी मौजूद है। इसी में रसूल पौलुस फरमाते हैं कुछ के नाम था उसके पहले बाब में, क्योंकि उसी में सब चीज़ें क्या आसमान में क्या ज़मीन पर क्या दीदनी क्या नादीदनी खलक की गई। अर्श, क़यादतें, रियासतें, हुकूमतें सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसमें कायम रहती हैं।
तो रूहों का वजूद है, रूहें कभी मरती नहीं है, जिंदा रहती है। इब्रानियों के नाम पर लिखा है कि पहले बाब में, और फिर जब फिरौठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें और फरिश्तों की बात फरमाता है, बाबत फरमाता है, और वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने आदमों को शोला सन आग बताता है। उसी में रिश्तों इस तरह रिश्तों का भी वजूद है और रूहों का भी वजूद है। और पौलुस फरमाते हैं रोमियों के नाम 7 में, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद है, दोनों का खुदावंद है। अब ये तो मैंने ज्यादातर बताया है रास्तकार रूहें, जो रास्तकार है, जो नेक हैं, जो नेकी करती हैं, खुदा की कलाम को प्यार करती हैं, खुदा को प्यार करती हैं। अब ये जो नाराज रूहें हैं, इनके साथ क्या होगा? नाराज रूहें जो हैं ये कैदी होती हैं। नाराज रूहें क्योंकि वो जिद्दी होती है, मनमानी करती हैं और ये कैदी होती हैं। और पहला पत्रस उसके 3 बाब में लिखा है, उसने उन रूहों के पास जाकर वास किया तो कहते हैं, हमने उन रूहों के पास जाकर वास किया जो कैदी थे। इसी तरह ये अज़ाब में है, तड़प रही है। ये जो है नादर और अमीर आदमी की कहानी में देखा कि अमीर आदमी और नादर की कहानी में अमीर आदमी अज़ाब में है और नादर जो है बाप इब्राहिम की गोद में है। उसी ये इब्राहिम की गोद का मतलब क्या है? इतनी बड़ी गोद है कि कितने लोग आ सकते हैं खुदा से बात इब्राहिम की गोद में जगह दी। ये वो जगह है जहाँ सुकून है, आराम है, जहाँ खुदा की हुजूरी है, आराम की जगह, सुकून की जगह। इसीलिए ये मुहावरा है और ये दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेहतरी के लिए खुदा हज़रत इब्राहिम की गोद में जगह दे। इस तरह खुदा जो है अयूब नबी जैसा इनको सब्र दे। इसी तरह रूहें तड़पती हैं। ये जो नाराज रूहें, अमीर आदमी और नादर की कहानी में अमीर आदमी तड़पता है और कहता है कि मेरे मुंह में भी एक कतरा डाले, क्योंकि वहाँ बहुत आग है। और फिर अपने भाइयों की फिक्र करता है। अब उसे याद आता है कि मैं नादर के साथ क्या करता रहा हूँ। उसे टुकड़ों पर भी बनने नहीं दे रहा था, कुत्ते उसने रखे थे, कुत्ते जो है टुकड़े खा जाते थे, कुत्ते फिर भी जो है मुझे उस नादर पर कर सिखाते हैं। इसलिए जो हम सब जो इंसान है, जब बीमार होते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की जो है खिदमत करें, एक दूसरे की तीमारदारी करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इंसान को खिदमतों की जरूरत होती है और इंसान का दारू है। इस तरह जो इंसान जो है हमेशा दूसरों का भला चाहे। ये रूहें जो है नाराज रूहें सजा की हालत में है, और दूसरा पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस का दूसरा खत 2 बाब 9 में, बेदीनों को अदालत के दिन तक सजा के लिए रखा जाता है। बेदीनों को अदालत के दिन तक सजा के लिए रखा जाता है। और मसीह जो ये जो है पहला सैमुएल इसका 2 बाब 9 में लिखा है, तारीकी में बदकार फना हो जाएंगे, तारीकी में डाले जाएंगे। और ये भी सजा है, वो फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमारे सामने ये बात आई है कि जो नाराज है वो फना हो, बर्बाद हो जाएंगे, दुख और तकलीफ में चले जाएंगे। जो रास्तबाज है वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए हमेशा की जिंदगी के लिए दुआ करें। खुदावंद आए इसलिए है कि हम हमेशा की जिंदगी
پائیں اور کثرت سے پائیں. آئے ہم خدا یسوع کے اس مشن میں شریک ہوں تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے بقا کا وسیلہ بنے, ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بنے, ہم خود بھی بچیں اور دوسرے کو بچائیں. مسیح ہمارے کے وسیلہ سے آمین.